کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سنتا، تہاڈی میری کنے سننے ہے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر. الحمدللہ رب العالمین
کائنات میں اللہ پاک نے جمع کروا دی، اور اللہ پاک میرے محبوب کے جس جس پہلو کو، جس جس وصف کو نبی پاک علیہ السلام کا کوئی امتی پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا کوئی امتی سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے کسی بھی وصف کو چھیڑتا ہے، تو ناظرین گرامی ہر اس اوصاف کے پہلو سے اور اس شان کے ہر لفظ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت اور رفعت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین گرامی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے، مبارک آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی پاک علیہ السلام کو ویسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر یہ آداب تم نے نہ سیکھے، اگر تم نے ان آداب کو فالو نہ کیا، تو ناظرین گرامی اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے سارے کے سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ والی آیت کریمہ آج کا میرا موضوع ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رہ کر اس آیت کریمہ کے متعلق، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق چند ایک باتیں سمجھا کر آپ کو اپنے موضوع کو کلوز کریں گے۔ ناظرین گرامی یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو عظیم آداب سکھائے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے کلام فرمائے اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو، تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو۔ یہ پہلا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ اور یاد رکھیے یہ والی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کے اندر جو صیغہ استعمال ہوتا ہے لا ترفعوا کا، عربی گرامر پڑھنے والے اور عربی گرامر کو سمجھنے والے ان باتوں کو شاید سمجھ پائے۔ لا ترفعوا فعل نہیں کا صیغہ ہے، اور فعل نہیں اور فعل امر کا جو صیغہ ہو اس صیغے کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا یا نہ کرنے کا حکم ارشاد فرما دے، تو اس کام کو کرنے یا نہ کرنے میں اگر بندہ سستی کا مظاہرہ کرے گا تو بندہ گناہگار ہوتا ہے، اور وہ حکم جو ہوتا ہے شرعی طور پر اس کی حیثیت ہوتی ہے یا فرضیت کی یا پھر واجب کی، یا وہ عمل و حکم واجب ہوتا ہے یا وہ عمل اور حکم فرض ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اس لفظ سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اپنی آواز کو پیارے آقا کی آواز سے اونچا نہ ہونے دینا بندہ مومن کے لیے فرض ہے، واجب ہے۔ اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جو بندہ فرض میں یا واجب میں سستی کرتا ہے، شریعت کی اس پر پکڑ ہوتی ہے، شریعت کی اس پر پکڑ ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو یہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ جب بھی میرے محبوب سے کچھ سیکھو یا میرے محبوب سے کچھ پوچھنا چاہو، سیکھنا چاہو، تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سکھایا۔ دوسرا ادب یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا کرنے میں، پکارنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का है। सुन्नी आज भी जब रसूलुल्लाह के मुबारक रोज़े के सामने ठहरते हैं तो आदाब को बजा लाते हुए अपनी आवाज़ों को ऊंचा नहीं होने देते। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी शुरू से ही, एक जुमला मैं हमेशा कहता हूँ, सुन्नी गुनाहगार होगा, सुन्नी बदआमाल होगा, सुन्नी बदकिरदार होगा, लेकिन सुन्नी बेअदब और नबी पाक अलैहिस्सलाम का बेवफा नहीं होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने और अल्लाह पाक के नबी की अता से ये सुन्नियों को एक ज़ेवर अल्लाह पाक ने अता किया है कि हम अल्लाह के भी, अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अंबिया के भी, तमाम रसूलों के भी, तमाम फरिश्तों के भी, और फिर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा का भी, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के तमाम उलमा का भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अदब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों को अल्लाह पाक ने एक अजीम दौलत अता की है कि सुन्नियों को जब भी कोई याद करता है तो कहते इतना जरूर है कि यार वो सुन्नी जो है ना दीवाने हैं। वो दीवाने किस चीज के हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात के, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की शान के, इन चीजों के सुन्नी दीवाने हैं। और अल्लाह करे कि ये दीवानगी बरोज़े महशर सुन्नियों को मिलती रहे जैसे मिल रही है। नाज़रीन गिरामी, ये जो आयत करीमा मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बारे में हज़रत इब्ने अबी मुलैका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ की रिवायत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल के कुछ पुरफितन लोग और फितना परवर लोग नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये कहते हैं कि उलमा के फरमान की कोई हैसियत नहीं, और उलमा की बातों को नहीं मानते, उलमा की लिखी हुई किताबों को नहीं मानते। इसलिए सिद्धा की हदीस पाक आपके सामने पेश करूंगा ताकि कोई भी मुनकिरीन और कोई भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला के नबी के फरमान का इनकार ना कर सके। आप फरमाते हैं कि दो बेहतरीन हजरात हलाक होने के करीब जा पहुंचे थे। हुआ यूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस वक्त अपनी आवाज़ें ऊंची कर दी थी जब बनु तमीम के सवाल बारगाह रिसालत में हाजिर हुए थे। उनमें से एक साहिब ने बनी मजाशा के भाई अकरम बिन हाबिस की तरफ इशारा किया कि उन्हें उनकी कौम का हाकिम बना दिया जाए, और दूसरे शख्स ने एक और शख्स की जानिब इशारा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उमर से कहा, आप ये कहकर मेरी मुखालफत करना चाहते हैं? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं तो आपकी मुखालफत नहीं चाहता। ये गुफ्तगू करते हुए इन दोनों हज़रात की आवाज़ें नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ठहरे हुए बुलंद हो गई। बुलंद आवाज़ किसकी हुई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक की। अफज़लुल बशर बादस अंबिया, ये आपका लक़ब है, शान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक की। और आगे जिन दूसरी हस्ती की आवाज़ बुलंद हुई वो फारूक आज़म है, जिनकी लाठी के रोक से जमीन चूसा हुआ तेल भी बाहर निकाल देता है। ये दोनों हजरात जब आपस में बहस करने लगे, बात करने लगे, तो आवाज़ें बुलंद हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन ही ये आयत करीमा नाज़िल की, फरमाया, ऐ ईमान वालों में सारे आ गए। हज़रत अबू बकर से लेकर आज तक अभी इस लम्हे जो रसूलुल्लाह का उम्मती बनकर पैदा हुआ है, इन सबको अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया कि ऐ मोमिनो, तुम्हारी आवाज़ मेरे नबी की आवाज़ से बुलंद किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। वला तजहरु लहू बिलक़ौली कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम, और मेरे नबी को ऐसे नहीं पुकारना जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। ऐसे अल्फाज से, ऐसे अंदाज से, ऐसे रवैये से मेरे नबी की शान में तुम्हारे अल्फाज नहीं पहुंचने चाहिए। दूसरी रिवायत सुनिए बुखारी शरीफ की, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से यही वाक़या मरवी है। अलबत्ता इसके आखिर में ये है कि इस गुफ्तगू के दौरान उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई, तो इस मामले में ये आयत करीमा नाज़िल हो गई। व अंतुम ला तशऊरून, ये पूरी आयत करीमा आपने तिलावत फरमाई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी बारगाह है और इस बारगाह के कितने बड़े आदाब हैं।
नज़ूल एक और रिवायत है, आप सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि ये आयत हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई। वो ऊंचा सुना करते थे, उनकी आवाज भी ऊंची थी। साफ ज़ाहिर है जो बंदा बहरा होता है वो सुनता भी आहिस्ता है और सुनता भी ऊंचा है, सॉरी, और बोलता भी ऊंचा है। जो बहरा होता है उसकी ये नेचर होती है, फितरत होती है। अब ये सहाबी रसूल है, इनकी आवाज भी ऊंची थी और बात करने में आवाज बुलंद हो जाया करती थी और बाद औक़ात इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचती थी। साफ ज़ाहिर है कोई बंदा जाकर है, मेरी बात सुनिए, कोई बंदा करीब बैठा हो तो साफ ज़ाहिर है उस बंदे को शायद ये अंदाज अच्छा ना लगे। अब रसूलुल्लाह जानते थे, रसूलुल्लाह ने कभी छिड़का नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह जानते थे कि मेरा ये गुलाम बहरा है, ये ऊंचा सुनेगा, ऊंचा सुनाएगा। इसके बावजूद रसूलुल्लाह ने नहीं छिड़का। लेकिन मेरे महबूब की शान ही इतनी है, अगर मेरे महबूब के आदाब से थोड़ा सा इधर उधर बंदा हो, खुद अल्लाह पाक कुरान नाज़िल करके नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के आदाब सिखाता है। अब जब ये मामला हो गए तो रिवायात में आता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात जब पूछते थे, कुछ सीखते थे, इतनी धीमी और इतनी आहिस्ता आवाज से कि बाद दफा रसूलुल्लाह पूछते थे हज़रत उमर से, उमर क्या कह रहे हो? इतनी शानों के मालिक और अंदाज ये अपनाते हैं। अब आप अंदाज़न कराइए, आजकल के कुछ लोग सोचते नहीं, समझते नहीं और प्यारे आका की शान में वो कलिमात, वो नाज़ेबा अल्फाज जो कि आज के ज़माने के एक आम नौजवान को भी कह दिए जाए तो उसका भी बीपी हाई हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपने आप को इल्मी किताबी कहने वाले नबी अलैहिस्सलाम की शान में इस तरह के कलिमात बोलते हैं, उनको सोचना चाहिए। अगर वो सीख सकते हैं तो ठीक, नहीं तो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब उनको सीखने चाहिए। एक और आयत करीमा, पहला पारा सूरतुल बकरा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। नाज़रीन गिरामी, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को एक और हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, मेरे नबी को राइना मत बोलो, व क़ूलू ज़ुरना वस्मऊ, और मेरे नबी की बारगाह में यूं अर्ज़ करो, कैसे? उन्ज़ुरना, या रसूलल्लाह हमारे हाल पर नज़र रहमत फरमाइए, वस्मऊ, और अर्ज़ करेंगे या रसूलल्लाह हमारे हाल की, हमारे दिल की फरियाद को सुनिए, यूं अर्ज़ करो। वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। नाज़रीन गिरामी, ये आयत करीमा पढ़ने का, तिलावत करने का, तर्जुमा तफसीर समझाने का जो मकसद है वो मैं
शराब पीते हो, चरस पीते हो, आइस पीते हो, अफीम, किसी भी लिहाज से किसी भी नशे में मुब्तला हो, सारा जमाना उस बंदे को नशे कहे, क्या उस इंसान के अपने बेटे उस बंदे को नशे बोलेंगे? और इल्मी किताबी, अगर तू अपने बाप को या मैं अपने बाप को या सारा जमाना अपने बाप को नशे होने के बावजूद भी अदब का लिहाज करते हुए नशे नहीं कहता, तो तू प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर का छोड़ना क्यों कहता है? क्यों इतनी तेरी हिम्मत हुई? कहां से तेरे अंदर इतनी ताकत आई कि तू मेरे नबी को कल का छोकरा बोले? मेरा रब कहता है वला तजहलू लहू मिन कौली कजाहि बादुकुम लिबादिन, कि जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, खबरदार मेरे नबी की शान में वो लहजा में इस्तेमाल नहीं करना। और तू मेरे नबी को कल का छोकरा कह के और यहूदियों की तारीफ करके रोज़मिल्लाह में डाल के यहूदियों की सब में शामिल होना चाहता है। इससे वाज़ेह तो यही होता है, ज़ाहिर तो यही होता है कि नबी अलैहिस्सलाम की शान में इस तरह के कलिमात बोल के रोज़मिल्लाह में डाल का नबी अलैहिस्सलाम की तू तहकीर करता है और यहूदियों को सपोर्ट करता है। फिर ऐसा कर, मैं तुझे मशवरा देता हूँ, ये जो मज़हबी इबादत तूने और रखा है इसको उतार, यहूदियों के साथ में जा शामिल हो। अगर हमारे साथ में रहना चाहता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना चाहता है और पढ़ता है, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के जो आदाब है वो सीख और उनको फॉलो कर। लोगों के अकीदे के साथ, लोगों के ईमान के साथ खिलवाड़ मत कर। नाज़रीन गिरामी, ये चंद एक बातें कुरान करीम की आयतें, हदीस करीमा की चंद एक रिवायतें आपको मैंने सिखाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी के आदाब के हवाले से दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे और आप